So we have all gathered here for the scholarship award ceremony of 6 students who were selected for the scholarship under the InduStar scholarship program. So InduStar scholarship program is a CSR initiative of InduStars Limited and is being implemented by Sishu Sarathi in partnership with various partner organizations across the Northeast. In Arunachal Pradesh, we have partnered with Arunachal Pradesh Parents Association of the Disabled. With their help, we have been able to get the applications of the students, and we have been able to reach out to the students who are in need of financial support. So the scholarship provides the financial support towards their higher education, whatever courses beyond the higher secondary level, higher secondary graduation, professional courses, and also beyond. जो भी उन लोगों का फीस पेमेंट है वो इंडस्टार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के को लोग पेमेंट कर देते हैं ताकि उन लोगों विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस, दे कैन कंटिन्यू देयर एजुकेशन. The only requirement that we have is above the benchmark disability of 40% and above matriculation. So these are the students who we are supporting, and today we have awarded the certificates to the students who have been selected from Arunachal Pradesh. There will be a short induction program also to explain them the procedure of claiming their scholarship and how this will go on, since the scholarship is till the completion of their education, from now till the completion of their education. So they need to understand the procedure कि किस तरीके से उन लोगों को जो फीस पेमेंट है वो होगा और कैसे उन लोगों को पता चलेगा, so that hassle free वो लोग पढ़ाई कर सके. So I thank Arunachal Pradesh Parents Association of the Disabled for helping us out to implement the scholarship program in the Arunachal Pradesh. So he's the president of the Arunachal Pradesh Parents Association, and I would really like him to speak a few words about the scholarship program. मैम, पर्सनली आपके जो टावर से जो स्कॉलरशिप के बारे में बताया है वो गवर्नमेंट फंडेड है या किस तरह से रन करते हैं? वो CSR इनिशिएटिव है. इंडस्टार्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसका नाम पहले भारती इंफ्राटेल लिमिटेड था, और वो कंपनी अंडर CSR इनिशिएटिव, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के अंडर ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम को फंड करती है. हम लोग ऑर्गेनाइजेशन है सिशु सारथी बेस्ड इन गुवाहाटी, एंड हम लोग इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. What would be the amount that students would be getting? So that is a very good question, because there is no specific amount of scholarship for the students. Whatever is their fees amount, whatever fees is being paid to the educational institutions, वो सब cover होता है. तो हम लोग का ऐसा कुछ limitations नहीं है. We give all the freedom to the students to choose their own courses, whatever they want to pursue, and accordingly जब उनको मिल जाता है, and after the induction process, whatever fees payment they have to make, they have to just put it. They have a scholars portal where they have to log in, and they have a dedicated passwords where they can put in the information, and we process the payment on their behalf. So there is no limitation. Will it extend till the student graduate? Is it? So it is not only for graduation. बहुत सारे students हैं जो लोग मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं या बैचलर कोर्स कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स MBBS कर रहे हैं. तो जब तक उन लोगों का कंप्लीट नहीं होगा, अभी जब से सिलेक्शन हुआ है टिल कंप्लीशन, वी विल प्रोवाइड द सपोर्ट अंडर द प्रोग्राम. अभी तक बेनिफिशियरीज कितना होगा, या नॉर्थ ईस्ट से कहीं, या अरुणाचल से अभी तक कितना होगा? अरुणाचल से इस सेशन में टोटल 6 स्टूडेंट्स है, बट टोटल इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हम लोगों ने 2016 में जो लॉन्च किया था, फ्रॉम 2016 टू 2021 वी हैव ऑलरेडी रीच्ड 435 स्टूडेंट्स हु विल बी प्रोवाइडिंग द सपोर्ट. अवेयरनेस की कमी है, तो अगर लोग इसको अवेल करना चाहेंगे तो डिसेबल वाला पेरेंट्स या बच्चे, तो उसको किस तरह से रीच आउट कर सकेंगे आप? एक हमारा एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है जो कि 7086268549, विच इज़ अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप, विच इज़ अवेलेबल ओवर द कॉल. तो कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कैसे अप्लाई करना है, कुछ भी अगर क्वेश्चंस है, वो लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. और इसके अलावा हमारा एक वेबसाइट है जो कि www.ssscholarship.org. उस वेबसाइट में जाके वो लोग स्टूडेंट्स लोग अप्लाई कर सकते हैं. जो भी डिटेल्स उनको चाहिए सब कुछ अवेलेबल है. पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस का नाम, नंबर, सब कुछ अवेलेबल है. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो फॉर लैंग्वेज और या फिर कुछ समझने में, तो वो लोग हमेशा पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. सर, ऑर्गेनाइजेशन. Thank you, Madhya. I'm being a parent association president and also being a father of disabled child. I really thank Sishu Sarathi Indus Tower for taking up this venture. We are really lucky being the part of local partners of the Sishu Sarathi organizing committee. We are trying our best to give help to the disabled communities
those who want to pursue higher studies, taking the opportunities being financed by the Indus Tower Limited and are organized by the Sisu Charity. सो सर ये आपका जो डिफरेंटली एबल जो पर्सन को आप फंड कर रहे हैं नहीं मैं फंडिंग नहीं हूँ, मैं पेरेंट्स हूँ, मैं you are the सपोर्ट parents. करता हूँ, हाँ So you are- कोऑर्डिनेशन कराता हूँ लोकल लोग अच्छा को। कोऑर्डिनेशन हाँ, हाँ। तो हाउ डज इट एक्चुअली वर्क एक्चुअली जो हम लोग ये टाइम्स में मीडिया में पब्लिश करता है समय में, तो बीइंग ए लोकल पार्टनर हम लोग भी मीडिया में लास्ट टाइम अरुणाचल फ्रंट में आया था, तो ऐसा एडवर्टाइज करता है, तो टाइमिंग देता है कि फिलअप करने का ऑनलाइन। जो नहीं कर पाता है सर मैडम लोग से हम हेल्पलाइन का नंबर देता है, हम लोग जो समझता बताते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेशन कराता है, क्योंकि बाहर से लोग आके डायरेक्ट नहीं कर पाता है। तो सर अभी तक कितना आपके बॉडी टीम की तरफ से कितने बेनिफिशियरीज को आप लोग ने लाइक हेल्प आउट कर किया होगा? अभी का ये साल में 5 तो एग्जैक्टली मिलेगा बोला, 6 तो था एप्लीकेंट ना। एप्लीकेशन तो हमारा यहाँ में ये नेटवर्क कमी का वजह से या आईटी में हमारे यहाँ पे हम लोग बहुत सी जगह में साइबर ये सब नेटवर्क नहीं होने का वजह से वो लोग नहीं कर पाता है, वो सब बच्चे लोग रिमोट एरिया में हैं। हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टाइप का पॉलिसी प्रोग्राम डिपार्टमेंट में करने से अच्छा है। ये तो प्राइवेट CHR मोड में कर रहा है, तो इस टाइप का बहुत सा यहाँ में इंडस्ट्रीज काम कर रहा है, ये प्राइवेट कंपनी से, उन लोग भी इस टाइप का ये एक्टिविटीज़ कराने से स्टेट के लिए बहुत भलाई होगा, हमारा डिसेबिलिटीज़ कम्युनिटी को बेनिफिट मिलेगा। हम यही चाहता है कि हमारा हर बच्चा जो राइट टू एजुकेशन होने का बावजूद भी नहीं पढ़ पा रहा है, अभी यहाँ में स्कूल भी नहीं है, तो बच्चा है जैसे कि मेंटल रिटार्डेड लोग हैं, बहुत सा ऐसा कुछ डिसेबल कम्युनिटीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, नहीं सक्सेस नहीं हो पा रहा है। CRC अभी ये वो भी नहीं हो पा रहा है, और हमारा गवर्नमेंट भी इतना टेकअप नहीं हो पा रहा है प्रैक्टिकली में। बच्चा घर घर में बैठा है, राइट टू एजुकेशन डिप्राइव ही हो रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से बच्चे को, ऐसे बच्चे को। इसलिए हम लोग मीडिया लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अच्छा आर्टिकल लिख के उन लोग को ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिसेबिलिटीज़ कम्युनिटीज़ एंड बीइंग द पेरेंट्स, हम लोग बहुत सफर होता है एज ए गार्जियन, एज ए केयर गिवर्स, हम लोग का भी बहुत सा तकलीफ होता है, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होने से और भी बर्डन हो जाता है, और जो अर्निंग मेंबर नहीं होता है उसका लिए एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग का गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम बना के कुछ बेनिफिट दिलाने से अच्छा है, ऐसे फैमिली लोग को स्पेशल केसेस देखने से ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सा तकलीफ होता है, उसको भी कंस्टिट्यूशन में लाने से ठीक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी हो या कुछ बेनिफिट कुछ ऐसा पढ़ उन लोग का एजुकेशन राइट्स को मिलने के लिए। हेल्थ इश्यूज़ भी होता है, उन लोग का स्पेशल बहुत सा बीमार होता है, वल्नरेबल होता है बहुत सा ऐसा डिसेबल बच्चे लोग को, उसका वजह से मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो केयर नहीं कर पाता है, पेरेंट्स लोग चाह के भी नहीं कर पाते, इसका वजह से मोर्टेलिटी हो जाता है, उसका राइट्स बहुत सा डिप्राइव होता है। तो इसको हम लोग गवर्नमेंट से यही अपील है कि अच्छा पॉलिसी प्रोग्राम बनाइए, मीडिया लोग आप लोग अच्छा कवरेज दीजिए, तो एटलीस्ट थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा पेरेंट्स लोग को और डिसेबिलिटी कम्युनिटीज़ को। हर फ्रंट में, एजुकेशन में बोलो, स्किल डेवलपमेंट में बोलो, या कोई भी लाइवलीहुड अपना मैनेजमेंट जो भी हो, अपना एडल्ट हो जाएगा तो उसका स्कीम टेकअप करने से अच्छा है। इतने सारे और हमारे सर आपने इतने सारे ग्रेविसेस अभी तक कंटिन्यू बता रहे, तो इस इशूज़ को लेके आप लोगों की टीम की तरफ से कभी गवर्नमेंट के हम लोग रीच आउट करने की कोशिश हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करते हैं समय समय में, और हमारे यहाँ में डिविजन वेलफेयर ये डिविजन सोसाइटी भी है, हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी है, पैरालंपिक से जो एडल्ट लोग अपना वो कर रहा है, जो बच्चे लोग जो नहीं लड़ पाता है उन लोग का मैं आवाज़ बनता हूँ। हम लोग पेरेंट्स लोग ना जो बच्चा नहीं बोल पाता है, हम लोग जनरली बच्चों के लिए उन बिहाफ ऑफ बोल देता है पेरेंट्स। तो आज सजिता की तरफ से डायरेक्टर मैडम भी आए थे, तो नहीं वो डायरेक्टर नहीं है, ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर आया है। हम लोग सेक्रेटरी मैडम को परसू किया है, वो भी नहीं आया है चीफ गेस्ट बनने के लिए, और डायरेक्टर साहब के दो बार आया था, तो बाद में ये हम लोग DC को भी रिक्वेस्ट किया था, सब लोग का बिजी शेड्यूल है, तो ADC को भी रिक्वेस्ट किया था, हम चेयरपर्सन लोग से भी वोट परसू किया था, नहीं आ पाया है, तो या 2 मैडम को हम लोग मिला है और एक्सेप्ट किया है, इसलिए मैं बहुत थैंक्स करता हूँ ये ऑफिसर का, उसका ड्यूटी भी बनता है इस फील्ड में काम करने का। ऐसा कुछ एश्योरेंस अपने तरफ से डिपार्टमेंट के लिए सजिता की तरफ से मैडम ने दिया है क्या आज प्रोग्राम में? उसका तरफ से तो करना चाहता है, लेकिन वो तो एक बोझ नहीं है ना, बोझ से ही होगा। सेक्रेटरी मैडम इनिशिएटिव लेना है, मिनिस्टर लोग टेकअप करना है, डायरेक्टर लोग करना है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। ऐसे तो जो हमारा RPD एक्ट 2006 जो ड्राफ्ट है असेंबली में पास है, लेकिन इन टोटो में प्रैक्टिकल ये में ग्राउंड में ये लागू नहीं है, उसको लागू कराने से बहुत सा डिसेबिलिटीज़ कम्युनिटीज़ को फायदा होगा। NGO में आज जो प्रोग्राम रखा गया अवेयरनेस करना, तो इसमें आप एज एन बेनिफिशियरी से लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था बोला, तो आप क्या कोर्स के ऊपर किया था? ये 12 हायर सेकेंडरी में था,
तब उसमें हम अप्लाई किया था। ओके, अभी अभी फिर क्या क्या आपने कोर्स का? अभी मैं कॉलेज का ओके, आपको ये इस एनजीओ से क्या क्या फैसिलिटीज या कितना अमाउंट फंडेड या क्या क्या सपोर्ट मिलता है, उसको थोड़ा शेयर करिए। जो हम स्कूल जो कॉलेज में हम लोग फीस जमा करते हैं, जो एडमिशन का फीस या और एग्जाम फीस का जो हम जमा करते हैं, तो उसको हम लोग को फिर वापस एनजीओ का तरफ से वापस हम लोग को मिल जाते हैं। तो अभी आप बोलिए। तो आप कभी गवर्नमेंट का थ्रू हेल्प मांगने की कोशिश किया था? हाँ तो हम कैसा रिस्पॉन्स है? हम गवर्नमेंट का तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज में हम ये किया था, लेकिन अभी कुछ मेरा डॉक्यूमेंट्स का कारण से हम कॉलेज अभी थोड़ा पेंडिंग होके रखा है, वापस स्टार्ट करेगा उसको। ओके, अभी जैसे कि प्रोग्राम की तरफ से आप लोग को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ना कहीं फाइनेंशियल भी, तो आप इन फ्यूचर क्या लगता है कि अपने मेहनत से क्या करेंगे? आपका एम क्या है, विजन क्या है, क्या सोचते हैं? मेरा एम तो क्या बोले, बड़े हो क्या मतलब आप क्या अभी बनना क्या बनना चाहते हैं? मेरा ड्रीम था एक लॉयर बनने का, तो हम उसका वो एम को लेके हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग का जो पहले जब हम क्या कहते पहले जब ये स्कॉलरशिप का हम अप्लाई नहीं करते, उसमें थोड़ा तकलीफ होता था, मीन्स कि पेरेंट्स मेरा लिए भी करता था, मेरा भाई बहन के लिए भी करता था। पर अभी ये स्कॉलर का जब हम अप्लाई किए, तो उसका कारण से मीन्स मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा हेल्प अभी होता है, क्योंकि स्कॉलर का तरफ से हमको पैसा मिलता है ना, इसलिए ये स्कॉलर को आप रीच आउट आएंगे कैसे करके मालूम चला कि आपको जाना है, इसको अप्लाई करना है, किस तरह से आप इसको अवेल किया, उसको तो बताइए। तो ये पहले हमको मालूम नहीं था, मेरे एक फ्रेंड जो हमको बताया कि ये ऐसे स्कॉलरशिप है, आप भी अप्लाई करो, आपका के लिए भी अच्छा हो। तो ठीक है, क्या हम भी अप्लाई किए, हमको लिंक शेयर किया, तो हम भी सर को कॉल करके पूछे कैसे कैसे करना है करके बोला, तो सर जब हमको लिंक शेयर किया और लिंक को हम अप्लाई किए, लिंक में जाकर हम अप्लाई किए, फॉर्म को अप्लाई करके उसको सबमिट करके हमें। लास्टली अपने तरफ से क्या इन थैंक्स गिविंग में जो एनजीओ आप लोग को हेल्प कर रहा है आपको, तो उसके तरफ से क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे अपने तरफ से? मेरे तरफ से हम मैसेज दे थैंक यू के एनजीओ लोग को, क्योंकि उनका वजह से हम लोग को आज हेल्प मिल रहा है, आगे अपना रास्ता में पढ़ाई का रास्ता का सपोर्ट कर रहा है हम लोग को, और हम लोग का पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर रहा है, तो उसका थैंक्स। थैंक यू।